بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ سوئٹزرلینڈ میں نئے سال کی خوشیاں غم میں تبدیل۔ سیاحتی مقام کرانس مونٹانا کے لگژری بار میں تقریب کے دوران دھماکہ ہوا، 40 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ دھماکے سے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، 100 سے زائد افراد موجود تھے۔ متاثرہ علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حکام نے دہشت گردی کا امکان رد کر دیا۔ صدر نے نیو ایئر پر اپنا خطاب مؤخر کر دیا، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں نئے سال کی خوشیاں غم میں تبدیل۔ جنیوا کے سیاحتی مقام پر دھماکہ، کئی لوگ جان سے گئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ سوئس پولیس نے نیوز بریفنگ میں بتایا، کرائس مونٹانا کے لگژری ریزورٹ کے بار میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ شعلوں نے کسی کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ ریسکیو کارروائیوں میں 10 ہیلی کاپٹر، 40 ایمبولینسز اور 150 ریسکیو ورکرز نے حصہ لیا۔ سوئس حکومت نے افسوسناک واقعے پر کرانس مونٹانا میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے بھی اس سال کا خطاب مؤخر کر دیا اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ پولیس حکام نے واقعے میں دہشت گردی کا امکان رد کیا ہے، جبکہ فارنزک ٹیموں نے جائے وقوع کو سیل کر دیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سوئٹزرلینڈ کے شہر کرانس مونٹانا میں دھماکے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور سوئس حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے افسوسناک واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کہا، دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان سوئٹزرلینڈ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں لکھا، نئے سال کی رات سوئٹزرلینڈ میں المناک واقعے پر بہت دکھ ہوا۔ ہمارے دل ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مشکل وقت میں سوئس حکومت اور سوئٹزرلینڈ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان نے 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی حکام کے حوالے کی۔ سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں، ڈھاکہ میں ایاز صادقی بھارتی رہنما سے مصافحے کی تصویر دیکھی ہے۔ زمانہ چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یمن تنازع کے پرامن حل پر بھی زور۔ ظہیر علی خان اس پر رپورٹ کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں اور جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ معاہدے کے تحت فہرستوں کا تبادلہ بیک وقت اسلام آباد اور دلی میں کیا گیا۔ پاکستان میں قید بھارتی باشندوں میں ماہی گیر بھی شامل ہیں۔ Government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. Both countries are required to exchange list of prisoners twice a year, first on 1st January and then on the 1st July each year. ترجمان دفتر خارجہ نے یمن تنازع طاقت کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ بتایا کہ سرحد بند ہونے کے باعث کابل میں پھنسے پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی کی کوششیں جاری ہیں۔ A total of 1199 Pakistanis approached our embassy in Kabul seeking assistance for their return. These include 549 students and 402 individuals, including those with the families. And out of those, as I said, 15 students and 291 individuals have already returned to Pakistan by air. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ ضمانت چاہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ انسانی بنیاد پر امدادی قافلہ بھیجا، تاہم اسے روک لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا تائیوان معاملے پر چین کی حمایت کا اعادہ، بھارت سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ ایک سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ڈھاکہ میں اسپیکر قومی اسمبلی اور بھارتی رہنما سے مصافحے کی تصویر دیکھی۔ ایاز صادق خود اس حوالے سے انٹرویو میں بات کر چکے ہیں۔ سال کے آغاز پر پاکستان کی امن اور خوشحالی کی امید میں بھارت پر نمایاں برتری۔ گیلپ سروے کے مطابق 51% پاکستانی نئے سال میں بہتری کے لیے پر امید۔ بھارتی عوام میں نئے سال اچھی امید کی شرح محض 39% ہے۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے میں پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سال 2026 میں قیام امن، معاشی بہتری اور خوشحالی کی توقعات میں پاکستان عالمی اوسط سے بھی کہیں آگے رہا۔ سروے کے مطابق نئے سال کے آغاز پر 51% پاکستانی عوام اچھے حالات کی امید رکھتے ہیں۔ 53% پاکستانی معاشی بہتری اور خوشحالی، جبکہ 52% امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ بھارت میں یہ شرح محض 39%، جبکہ عالمی اوسط شرح 24% ہے۔ سروے کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے عالمی سطح پر 3
अहम पैमानों में औसत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इनमें मजमूई उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को शामिल हैं। पाकिस्तान ने इनमें से 2 पैमानों में भारत पर वाज़ेह सबकत हासिल की है। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया। गैलप के मुताबिक 2026 के आगाज पर दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान में उम्मीद की सतह 1994 के बाद बुलंद तरीन है। ये रुझान 1990 की दहाई के आखिर और 2010 की दहाई के वस्त में देखा गया था। सर्वे मुआशी तरक्की और आलमी अमन के बारे में पाकिस्तान की आलमी और इलाकाई हम मनसूबों से बेहतर तस्वीर पेश करता है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि भारत के लिए 2025 नाकामी और हजीमत का साल साबित हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 2025 भारत के लिए बहरानों का साल साबित हुआ। अमेरिका भारत तिजारती मुआहिदा मुतादिद बार मुलतवी हुआ। अमेरिकी टैरिफ के निज़ाम से भारत को इक्तसादी दबाव का सामना करना पड़ा और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से रवाबित बढ़ाए। अमेरिका पाकिस्तान रवाबित को फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय सिफारती नाकामी करार दिया। और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारों को इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात में इजाफे के लिए तजावीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। मुतालिका वजारतें पाकिस्तानी सिफारत खानों के जरिए बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए मौसर ताउन करें। सरमायाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम शोबों पर यकसा तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने पर भी हिदायत कर दी है। साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,75,000 और 76,000 पॉइंट्स के 2 संगे मील अबूर कर गई। एक दिन में 1 अरब 40 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग का गैर मामूली हुजूम रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आलम। सरमायाकारों का माशी बेहतरी का एतराफ। साल का पहला दिन स्टॉक मार्केट ने नया आसमान छू लिया। 2600 पॉइंट्स की नुमाया तेजी रूनुमा हुई। मार्केट तारीख में पहली बार 1,75,000 और 1,76,000 पॉइंट्स के 2 संग मील उबूर कर गई। 2-3 साल से जो मेहनतें हो रही हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल सिनारियो चेंज हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो असर है, इसका जो बेनिफिट है, वो अब इंशाल्लाह हमें मिलेगा। तो आने वाले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। अभी इकोनॉमी की जो टर्न अराउंड की बातें हो रही थी वो सही पड़ रही हैं और लोगों को इंटरेस्ट रोज़ ब रोज़ इधर बढ़ रहा है। आज भी देखें अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के ऑर्डर्स हैं। नए साल का पहला दिन है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हो कि भाई एनर्जी का सेक्टर हो। आज अक्रॉस द बोर्ड है, बैंक हैं, ऑयल है, एनर्जी है, फार्मा है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,301 पॉइंट्स बढ़कर 1,76,355 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 49 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 40 करोड़ शेयर्स के नुमाया सौदे हुए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। हुकूमत का आवाम के लिए नए साल का तोहफा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे और डीजल 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे और डीजल 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सुनकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। कमी आई तो बेहतर लगा है, लेकिन एक्चुअली ये प्राइस इतनी होनी नहीं चाहिए। तो ऐसी कि किसी चीज़ को आप 10 की चीज़ को 20 का करके फिर 5 रुपए कम कर दो। अभी भी बहुत गुंजाइश है कि कम कर सकते हैं इसमें। अगर ये कम किया है, नए साल की खुशी है हमें, लेकिन ये 20 दिनों के अंदर फिर बढ़ जाएंगे। पेट्रोल कम होने की सूरत में हर चीज़ नीचे आनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो अच्छा हुआ, ठीक है, इससे हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन बशर्ते कि ये कुछ चंद दिन रहना भी चाहिए। हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है, मतलब पेट्रोल सस्ता करना, बाकी चीज़ें भी इनको चाहिए कि सस्ता करें। बहुत अच्छा किया कि आवाम के लिए बहुत रिलीफ दिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने काफ़ी देर बाद गाड़ी गराज से बाहर निकाली है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी। पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में $1 करोड़ की कमी। माली हजम 21 अरब $1 करोड़ 22 लाख रिकॉर्ड किया गया।
स्टेट बैंक के डॉलर रिजर्व 1 करोड़ 30 लाख डॉलर से बढ़कर 15 अरब 91 करोड़ 50 लाख हो गए। बैंकों के डॉलर डिपॉजिट्स 2 करोड़ 30 लाख डॉलर से कम होकर 5 अरब 9 करोड़ 70 लाख डॉलर रह गए। वज़ीर आला पंजाब ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा समेत कोर कमांडर लाहौर भी शरीक हुए। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। अरीना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात पर भी अमल में लाई गई है। आपको अफसोसनाक खबर देंगे गुजरात से, जहां संगदिल मां ने अपने 3 कमसिन बच्चे कत्ल कर दिए। शनाख्त छुपाने के लिए लाशें जलाकर आज़ाद कश्मीर में दफन कर दी। पुलिस ने खातून और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाकया सराय आलमगीर में हुआ, जहां सिद्रा नामी खातून 12 रोज कबल अपने 3 बच्चों के साथ अचानक गायब हो गई। पुलिस ने शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया, जिसमें इंकशाफ हुआ कि मुलजिमा सिद्रा ने अपने दोस्त बाबर के साथ मिलकर तीनों बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया, फिर लाशें जलाकर आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दफन कर दी, जिन्हें दौरान तफ्तीश बरामद कर लिया गया। बच्चों की उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान थी। मुलजिमा के मुताबिक वो बाबर से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उसने बच्चों को कत्ल किया। लाहौर में बादल मंडलाने से अब्र रहमत बरसने के इम्कानात बढ़ गए। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। कहते हैं बारिश हुई तो स्मोग और दर्जा हरारत में मजीद कमी आएगी, लेकिन सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। नुमाइंदा समा उमर याकूब इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमर, बताइए इस हवाले से। आज बिल्कुल नए साल का पहला दिन है, लेकिन लग ये रहा है कि जो सूरज है वो 2025 में रह गया, क्योंकि आज सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी खासी ठंड है इस वक्त भी। और महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि बारिश भी हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तो बारिश हुई भी है और 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड भी की गई है, और लाहौर में भी यही पेशगोई की जा रही है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, क्योंकि इस वक्त भी जो बादल है वो मंडला रहे हैं और जो हवा में नमी का तनासुब है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रहा है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि अगर बारिश होगी तो स्मोक की शिद्दत में भी कमी आएगी, लेकिन सर्दी बढ़ जाएगी। और अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी आएगी। जी, बहुत शुक्रिया उमर आपका। बालाई इलाकों में बर्फबारी से नए साल का आगाज। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। गलियात में सफेद मोतियों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान में हर सू सफेदी। नलतर, यासीन और खुंजराब में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लवारी टनल ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की नॉन स्टॉप मौज मस्तियां। शोगरा में 5 और कागान में 2 इंच बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और रावला कोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है।